You all, I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 6th of December. In this video we will be talking about the 18th edition of NCB International Conference and Exhibition on Cement, Concrete and Building Materials that was held in New Delhi. Then we will be talking about exercise Sinbex. Next thing we will be talking about the gig workers here, that what is the population, what is the scenario in gig workers economy in future. Next thing we will be talking about, India has been re-elected to the UN Peace Building Commission. Then Delhi Chief Minister inaugurated the India's first underground shooting range for NCC cadets in New Delhi. We will be discussing all these things in detail, and the content here will be very beneficial for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. We make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. We make sure to upload the weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise on regular basis, so that the content provided here can be beneficial for you in the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Start with national affairs students. 18th edition of the NCB International Conference and Exhibition was held on cement, concrete and building materials that was held in New Delhi, right? And Amardeep Singh Bhatia, the secretary of DPIIT, that is your Department of Promotion of Industry and Internal Trade, that comes under the Ministry of Commerce and Industry. He inaugurated, that is Amardeep Singh Bhatia inaugurated the 18th edition of the NCB International Conference and Exhibition on Cement, Concrete and Building Materials. This conference was held from 27 to 29th of November. It was held where location, that is IIC Dwarka. What is IIC? IIC is your India International Convention and Expo Center, that is by the name Yashobhumi. Correct? Then where is this? It is in New Delhi, right? You can see here at India International Convention and Expo Center Dwarka in New Delhi. Correct. Apart from this, Amardeep Singh Bhatia also presented the NCB Lifetime Achievement Award to Padma Shri awardee Dr. H.C. Viswasarya in recognition for his exceptional contribution to the cement and concrete sector. Right? We know that in order to develop the infrastructure, we need cement, we need concretes, right? And in order to grow this sector, to regulate this sector better, these all conference and these awards were presented. Next we are talking about is NCB, as NCB has signed 2 memorandum of understanding for advancing decarbonization and technology innovation in the cement industry. Correct? Take a note of this. The first MOU was between NCB and GCCA. That is GCCA is your Global Cement and Concrete Association. Second MOU is between NCB and AIC Plasma Tech Innovation Foundation, and it is for basically the application of thermal plasma torch technology in cement production. So just remember these 2 MOUs and along which was signed. Next we are talking about exercise Sinbex, right? This Sinbex exercise, this is the inaugural edition. That means this is the inaugural edition. This means it is the first edition of this exercise Sinbex. Correct? And this exercise was held between Indian Army and Cambodian Army. This you can get from the name itself, CIN. Right? C for Cambodia, India. Right? This Cambodia, India bilateral
exercise. Correct? Take a note of this. And in this, it was between Indian Army and Cambodian Army. This exercise was conducted. Correct? Take a note of this. In this exercise, 20 persons from both the sides were present here. This exercise was conducted in the 3 phases. First is your orientation phase, then the conduct of the tabletop exercise. Just remember that this was conducted in 3 phases. Also, this exercise will be talking about IT operations, cyber warfare, logistic security, humanitarian assistance and disaster relief operations, and so on. Next is number of gig and platform workers in India is expected to increase to 23.5 million between 2029 to 2030. I repeat, the number of gig and platform workers. Who are the gig workers? Gig workers are those workers who are employed in, say, for example, your delivery services, right? So it is expected that such jobs in India will be increasing, right? This data was released by Niti Aayog. This is the report that stated that the gig workers will constitute 6.7% of the non-agriculture workforce or 4.1% of the total livelihood in India by 2029, or by, we can say, FY 2030. As per the estimation, around 7.7 million people, including women, were engaged in the economy, in the gig economy in FY 21. Also, this report stated that this number will be increasing. Correct? Apart from this, you can see by 2022, it is expected that by 2024 or by this current year, it is estimated that India's gig economy will grow at a rate of 17%, with gross volume expected to reach 455 billion in 2024. Also, the gig sector has potential to create 90 million jobs and contribute 1.2% to 5% of the India's GDP. Right? Coming back, it was Niti Aayog that has released this report on the gig economy. Who is the Chief Executive Officer of Niti Aayog? BVR Subramaniam, headquartered in New Delhi, established in 2015. Next is, India has been re-elected to the UN Peace Building Commission for 25-26, that is for the FY 26. So, which country has been re-elected to the UN Peace Building Commission? It is India. Correct? And remember, currently India is serving as the member of the commission and its tenure will expire on 31st of December 24. But now again it has been appointed as the member. If we talk about the PCB, that is PBC, that is Peace Building Commission, it was established in December 2005. This is an intergovernmental body, right, that supports, as the name suggests, peace building. This promotes peace globally. Right, and India has been a founding member of the PBC since its formation in 2005. As currently PBC has 31 member states. Next, Delhi Chief Minister inaugurated India's first underground shooting range for NCC cadets in New Delhi. Who is the Delhi's Chief Minister? Atishi. Right, and she is the 3rd women Chief Minister of Delhi. Correct? And she has inaugurated the first underground shooting range for the NCC. NCC is your National Cadet Corps at NCC Bhavan in Rohini, Delhi. The inauguration of this facility marks a significant milestone in the development of the NCC cadets, providing them with world-class resources to enhance their training and skills. This underground shooting range features a 25-meter firing range, 6 firing lanes, bulletproof ceilings, ensuring maximum safety for the trainees. If we talk about NCC, National Cadet Corps, it was established in 1948 and this aims to create a pool of organized, trained, motivated youth who will serve the nation in various capacities. Next is, Indian Army has launched Eklavya digital platform for officer training. In order to provide training to the officers in today's ecosystem, in today's generation, various skills are required by an individual officer, right? To train him in that, Indian Army, they have launched this Eklavya digital platform, right? This marks a significant step towards modernization, and this is in line with Indian Army's Decade of Transformation initiative, and the theme for the Decade of Transformation 2024 is Year of Technology Adoption. And we also know that 2024 was declared by Indian Army as the Year of Technology Adoption.
right? And for the same reason, this Eklavya was launched, that is a digital platform for the training of officers. This platform was developed under Shimla based headquarter training command with Army War College. Apart from this Eklavya platform that will enhance professional military education, reduce course congestion, prepare officers for specialized roles, promote continuous learning and specialization. Then this initiative is a major step towards leveraging technology for the advancement of Indian Army's training program, and this will have 96 courses from 17 categories. Next is international affairs. Russia hands over BRICS chairmanship to Brazil at Sherpa meeting in Ekaterinburg. I repeat, recently Russia has handed over the BRICS chairmanship to Brazil. So who was having the BRICS chairmanship as of now? It was Russia. And even if you remember, few weeks back only, in Russia only the BRICS meeting was held. Right now, who is having the BRICS chairmanship? So Russia transferred it to which country? Brazil. And if you remember, Brazil is also one of that country who was against the BRI initiative, that is the New Silk Road initiative of China. Even India was against this, is against it. Correct? So important. Now the BRICS chairmanship will be with which country? It will be with Brazil. Next is India, UK. They have signed a SOI. SOI is your statement of intent. Correct? So this India and UK, they signed this statement of intent to develop electric propulsion systems for the naval ships. Right? We know now everything is getting electric. We are now shifting everything to electric so that pollution is not created. Right? With the help of electric, we will be seeing electric vehicles are coming. Right? We know that the buses, the transportation system is also being now shifting to electric. So why not shift the these naval ships also to electric? Right? So India and UK, they have signed this statement of intent where we will be working upon developing electric propulsion systems for the naval ships. Correct? Take a note of this. Next is banking and finance. NPCI, that is your National Payment Corporation of India, they have recently approved Fee-commerce UPI switch. What is this UPI switch? This UPI switch is a product that will enable the communication between the core banking systems and UPI systems that are managed by the NPCI to process transaction. With this, the user initiates a UPI transaction and the UPI switch requests the bank, ensuring that the money debited from the sender's account is seamlessly credited to the receiver's account. Correct? So NPCI has approved the Fee-commerce UPI switch. Right? This Fee-commerce, remember, this is Pune, Maharashtra based digital fintech platform. Correct? And they have partnered with whom? They partnered with NPCI. Correct? Or they basically received this authorization from NPCI that they can use this UPI switch. Next is Navi has overtaken CRED to become the fourth largest UPI application. Sachin Bansal's application Navi overtakes Kunal Shah's CRED to become the fourth largest UPI app in India, and NPI data shows that Navi witnessed 31% growth by registering 157.51 million transactions in October 2024, overtaking Bengaluru-based CRED, which recorded 152.28 million transactions in the same month. Next is appointments and resignation. Vijay Chandok has joined NSDL as the Managing Director and Chief Executive Officer. Vijay Chandok, as you can see him in the picture here, right? He will be in this position for the next 5 years. Correct? He will be succeeding whom? He will be succeeding Padmaja Chundru. Vijay Chandok, right? He began his professional career with ICICI Bank in 1993. Then he elevated to the role of the president in 2010 and 2016. He served as the ED for the bank. Coming back, if we talk about NSDL, that is your National Securities Depository Limited. Who is the Managing Director and Chief Executive Officer now? Vijay Chandok. Where is the headquarter? Mumbai, Maharashtra, and it was established in 1996. Moving on, students, to acquisitions and mergers. Tata Electronics to acquire the stake in the Pegatron's iPhone plant in Tamil Nadu. So Tata Electronics, they will be acquiring how much stake? So Tata Electronics, they have acquired 60% stake in the Pegatron, that is a Taiwanese
contract manufacturer for iPhone, and this is the plant that is located in Chennai, Tamil Nadu, and a joint venture will be formed there. 60% will be now with Tata Electronics. Next is environment. New species of crocodile, cow bang crocodile nuet, has been discovered in Vietnam. So take a note of this. Next is obituary. SR Group co-founder Shashi Ruia has passed away at the age of 81. As you can see him in the picture here, right? He passed away in Mumbai, Maharashtra. Shashi, known for his humility and philanthropy, was a first generation entrepreneur and businessman who began his career in 1965 under the guidance of his father Nand Kishore Ruia. Next is renowned endocrine surgeon and Padma Shri awardee Shiva Patham Vittal has passed away at the age of 83. As you can see him in the picture, correct? The government of India honored him with Padma Shri award, that is the third highest civilian award, in 2011 for his service in the field of medicine. Next is important days. Day of remembrance for all victims of chemical warfare observed on 30th of November. We know chemical weapons are very deadly, right? And especially, in the international law, these chemical weapons are actually banned, that no country should use these chemical weapons, correct? So the day of remembrance for all victims of chemical warfare is observed by UN. It is observed globally on 30th of November, and it is to remember and honor all those people who have lost their life due to the chemical warfare. First ever edition of this day was observed in 2016. Next is World AIDS Day, observed on 1st of December. Right? This day is observed basically to create awareness about AIDS. Right? It is observed, this day basically raises awareness about the HIV AIDS. HIV is your human immunodeficiency virus, correct? And this is basically, in this, what happens is, in AIDS, the white blood cells, right, their functioning becomes less, right? The body is not able to fight against the infections properly, right? So this day is observed on 1st of December. Next is the 60th raising day of the Border Security Force, observed on 1st of December. It is to raise awareness about the security forces, right? It is observed basically to create awareness about all those people who are working in the forces to make sure that our India is safe. And this 1st December, it marks the establishment of the Border Security Force that came into existence on 1st of December 1965. And this year in 2024, it was the 60th edition of this raising day of the BSF that was observed. Next is state news. D. Krishna Kumar appointed as the Chief Justice of Manipur High Court. I repeat, Ministry of Law and Justice has notified the appointment of Justice D. Krishna Kumar of Madras High Court as the Chief Justice of High Court of Manipur. Take a note of this. Next, remember, Ministry of Home Affairs has appointed Khilli Ram Meena as the Mizoram's Chief Secretary. I repeat, Ministry of Home Affairs has announced the appointment of Khilli Ram Meena, a senior Indian IAS officer from the 1993 batch of the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory cadre, as the new Chief Secretary of Mizoram. Take a note of this, direct question can be asked. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part. Next, who among the following is not featured on the Time 100 most influential people in AI 2024 list? Who among the following is not there? Akshit Bansal is not here. Next, name the award that was recently presented by the President Draupadi Murmu ma'am to 15 nurses and midwives at an event held at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. So, name the award. What was the name of that award? It is National Florence Nightingale Award. Right? This is to honor the nurses and midwives, because Florence Nightingale, she was very famous nurse, right? She did a lot of community work, and to honor her, this award was established on her name. Next, which railway station has been recently awarded with the non-suburban Group 1 status by the Ministry of Railways? So, which railway station it is? It is Vijayawada Junction Railway Station. Next, here remember this NSG1 status, correct? This NSG1 status is given to the station where annual revenue is more than
500 crore rupees, or the number of passengers per year is more than 20 lakhs. Next, which organization has recently received the 2024 United Nations Interagency Task Force Award for its significant multi-sectoral action to the prevention and control of NCDs and mental health? Correct. So, which organization received this 2024 UN Interagency Task Force Award? It is India Council of Medical Research. Next, which Indian film industry personality was recently honored with the Global Prestige Award in the UK Parliament? It is Vinod Bachchan, right? Very famous Bollywood film producer Vinod Bachchan was honored with this global prestigious award at the House of Lords in UK for his contribution to the Indian film industry. Next, name the movie that was recently entered into the 97th Academy Awards, that is Oscars 2025, for the Best International Feature Film category. The name of the movie is Lapata Ladies. Right? This film was unanimously selected by 13-member jury of FFI headed by Assamese director Jhanu Barao. Next, who has been crowned Miss Universe India 2024 in Jaipur, Rajasthan? So Riha Singha, right, has been crowned Miss Universe India 2024 in Jaipur, Rajasthan. And now Riha Singha will now represent India at the 73rd Miss Universe 2024 pageant scheduled to be held in Mexico in November 2024. Next, name the Indian who has been recently honored with the prestigious award by the South Korean government for strengthening the relationship between Korea and India. So she is Anushka Sen, a TV personality, and she received this award from Hyun Woo Kim, right, the Chief Executive Officer of Seoul Business Agency. Let's move to the homework part. Your first question is, tell me recently SAREX exercise. This was held where and between which two countries it was held? Second, tell me recently who won the Davis Cup. Third question, recently which is the third largest tiger reserve of India? Right, it was in news recently. So these are your homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. Now let's move to the Hindi segment of this video. कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 6 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18वें एनसीबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो कि सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पे हुआ। देन हम बात करेंगे सिनबैक्स एक्सरसाइज की, ये इसका पहला एडिशन रहेगा एक्सरसाइज का। देन हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में कि वो कितनी इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। देन हम बात करेंगे इंडिया को रिलेक्ट किया गया टू द यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के द्वारा पहला अंडरग्राउंड कुछ लॉन्च किया गया है फॉर एनसीसी कैडेट्स न्यू दिल्ली में। इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती है ताकि आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Start करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स से। हम बात करेंगे 18th एडिशन ऑफ एनसीबी। एनसीबी क्या है?
एनसीबी आपका बेसिकली याद रखेंगे नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, राइट। तो 18वीं एनसीबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हमें देखने को मिली ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर हुई? आईआईसी, जो कि द्वारका में है, वहाँ पर हुई। आईआईसी क्या है? इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। इसका नाम क्या है? यशोभूमि, राइट। यशोभूमि में ये देखने को मिली, मार्क करके चलेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, इसकी एक थीम थी जो थी है सीमेंट द नेट जीरो फ्यूचर। ये आपकी थीम रहेगी, करेक्ट, ताकि जो सीमेंट इंडस्ट्री में है उसमें हम जीरो यहाँ पे एमिशंस ला सकें, राइट। इसलिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया, ये बेसिकली थीम थी इसलिए यहाँ पर, करेक्ट। एंड हम जानते हैं हमारे आज के टाइम पे अगर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है तो सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है जिससे नींव रखी जाती है। इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसी के अलावा 2 MOUs याद रखेंगे, राइट। इसी के अलावा एक और चीज, अमरदीप सिंह भाटिया जी, इनके द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं DPIIT के, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 18वां एनसीबी इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को। इसी के अलावा याद रखेंगे अमरदीप सिंह भाटिया जी, इन्होंने ही एनसीबी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया किनको? पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर HC विश्ववर्या को, राइट, जो इनका सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। इसी के अलावा याद रखेंगे एनसीबी के द्वारा 2 MOU साइन किए गए हैं ताकि डिकार्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लाया जा सके सीमेंट इंडस्ट्री में। जो पहला MOU साइन किया गया है वो है आपका GCCA के साथ, जो कि है ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन के साथ, डिकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। एंड दूसरा है आपका AIC प्लाज्मा टेक इनोवेशन फाउंडेशन के साथ, ताकि थर्मल प्लाज्मा टॉर्च टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सिनबैक्स एक्सरसाइज। सिनबैक्स एक्सरसाइज पहला एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन है ये इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में हुई। आप इसको कैसे याद रखेंगे? कंबोडिया इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, तो सिनबैक्स एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज की तरफ से, दोनों कंट्रीज आर्मी के बीच में हुई एक्सरसाइज हुई थी। 8 दिसंबर 2024 तक ये एक्सरसाइज चलेगी। लोकेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पहले एडिशन ऑफ सिनबैक्स एक्सरसाइज कहाँ हुई? पुणे महाराष्ट्र में हुई। 20 पर्सनल थे, दोनों तरफ से हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिले। एंड 3 फेजेस में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय FY 2030। मतलब जो गिग वर्कर्स हैं, गिग इकोनॉमी होती है वो वर्कर्स जो बेसिकली आपके नॉर्मल वर्कफोर्स में एम्प्लॉय नहीं होते, जो आपके जैसे डिलीवरी बॉयज हो गए, राइट, इस सेक्टर में ज़्यादा वो इंक्लूडेड रहते हैं, करेक्ट। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिग इकोनॉमी इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से अभी बूम कर रही है। अभी एक डाटा रिलीज़ किया गया, आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री शोभा करंदालजे जी के द्वारा इन्होंने इन्फॉर्म किया दैट इनके द्वारा बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग की। ये रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि जो गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनकी जो तादाद है, राइट, देयर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय 2030, दैट इज FY 2030। इसी में हम देखें जो गिग वर्कर्स हैं ये 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और 4.1% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड इन इंडिया बाय 2030। एज पर द एस्टिमेशन अराउंड 7.7 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग वीमेन वर एंगेज्ड इन द गिग इकोनॉमी इन FY 21। एंड यहीं पे एक और डाटा याद रखेंगे, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है ये ग्रो करेगी एट द रेट ऑफ 17%। ऑल्सो जो गिग सेक्टर है हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट 90 मिलियन जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट 1.25% टू द इंडियाज GDP। ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसको एस्टेब्लिश 2015 में किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया को रिलेट कर लिया गया टू द UN पीस बिल्डिंग कमीशन FY 26 तक। मतलब अभी 31 दिसंबर 2024 को इंडिया की मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी, तो अब वापस से इंडिया को यहाँ पे रिलेट कर लिया गया है। पीस बिल्डिंग कमीशन, राइट, PBC, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में दिसंबर के महीने में एंड इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था यहाँ पर। अभी टोटल 31 मेंबर्स हैं PBC में, तो इंडिया को रिलेट कर लिया गया है। एंड इवन याद रखेंगे
इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनिफॉर्म पर्सनल्स टू द यूएन पीस कीपिंग मिशन। 2 लाख से भी ज्यादा इंडिया यहाँ पे सर्व कर चुके हैं इन द पीस कीपिंग मिशन। करंटली अगर देखें 6000 से ज्यादा मिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड है इंडिया के इन द पीस बिल्डिंग मिशन इन वेरियस कंट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया पहला अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज फॉर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का न्यू दिल्ली में, राइट। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए, एनसीसी कैडेट्स के लिए यहाँ पर ये शूटिंग रेंज लॉन्च की गई है, पहली अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज, जो कि कहाँ पर होगी, रोहिणी में होगी, एनसीसी भवन रोहिणी में इन दिल्ली। एंड ये कैडेट्स के लिए होगी, उनकी ट्रेनिंग के लिए होगी। एंड ये 25 मीटर की यहाँ पे ये रेंज रहने वाली है, करेक्ट। 6 फायरिंग लेन्स होंगी, बुलेट प्रूफ सीलिंग्स होंगी, इंश्योरिंग मैक्सिमम सेफ्टी फॉर द ट्रेनीज, ठीक है। एनसीसी की बात करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग, करेक्ट। हम जानते हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है सारी जगह, हम जानते हैं आज के टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाती है, हम जानते हैं कि इवन अगर आप देखेंगे इंडियन आर्मी का जो ईयर था 2024, इन्होंने डिक्लेयर किया था 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ठीक है, इंडियन आर्मी ने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि क्यों ना हम अपने ऑफिसर्स को डिजिटाइज फॉर्मेट में मॉडर्न ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकें, इसीलिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑफिसर ट्रेनिंग्स के लिए, जिसका नाम रहेगा एकलव्य, ठीक है। इसकी बात करें तो ये प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन देगा, कोर्स कंजेशन मतलब भीड़ को खत्म करेगा, ऑफिसर्स को प्रिपेयर करेगा स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए। देन ये जीटीटी मेजर स्टेप्स है टुवर्ड्स लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ द इंडियन आर्मीज ट्रेनिंग प्रोग्राम। 96 कोर्सेज यहाँ पे 17 कैटेगरीज में से देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। रशिया ने अभी हैंड ओवर किया ब्रिक्स चेयरमैनशिप टू ब्राजील। अगर आपको याद हो, कजान में भी रिसेंटली रशिया में यहाँ पर आपका ब्रिक्स समिट हुई थी, जहाँ पे पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अब रशिया ने हैंड ओवर कर दिया किसको, ब्राजील को, ये चेयरमैनशिप। इवन अगर आपको याद हो, ब्राजील वो कंट्री थी जिन्होंने चाइना का BRI इनिशिएटिव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था आफ्टर इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया था, राइट। तो ब्राजील दूसरी ब्रिक्स कंट्री बनी थी जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इवन अगर आपको याद हो तो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बोला है कि अगर ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लाती है तो वो 100% यहाँ पे टैरिफ लगा देगी, किन पर, ब्रिक्स नेशंस पर, कि 100% आपको अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट टैरिफ लग जाएगा। चलिए ऑन ट्रेड नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया एंड यूके, इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया ताकि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके नेवल शिप्स के लिए। देखो आजकल इलेक्ट्रिक हर चीज़ में आ गया है, आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, आपकी कार्स में, आपकी बाइक स्कूटीज़ में, 2 व्हीलर्स में, राइट। प्लेन्स इलेक्ट्रिक होने की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि क्यों ना नेवल शिप्स को भी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक कर दें। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन हमें खत्म करना है। तो यहाँ पे इंडिया और यूके के बीच में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ कि क्यों ना जो नेवल शिप्स है उनकी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को हम बनाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, राइट। इनोवेशन होगी, को डिजाइन किया जाएगा, को क्रिएशन होगी, को प्रोडक्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया फी कॉमर्स इनके यूपीआई स्विच को। यूपीआई स्विच क्या है? बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो कि कम्युनिकेशन एनेबल करता है बिटवीन द कोर बैंकिंग सिस्टम एंड यूपीआई सिस्टम मैनेज बाय जो एनपीसीआई, करेक्ट। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती है, दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई उसको मैनेज करने का ये काम करेगा यूपीआई स्विच, करेक्ट। एंड ये मेक श्योर करता है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है, पैसा बैंक अकाउंट से डेबिटेड हुआ है राइट सेंटर के अकाउंट से, तो वो रिसीवर के अकाउंट में सीमलेसली पहुंच जाए। तो एनपीसीआई ने यहाँ पे फी कॉमर्स के यूपीआई स्विच को यहाँ पे अभी अप्रूवल दे दिया है। फाई कॉमर्स की बात करें तो ये कहाँ की कंपनी है? पुणे महाराष्ट्र बेस्ड ये फिनटेक प्लेटफॉर्म रहने वाला है, ठीक है। अर्लियर रेजर पे हैज लॉन्च्ड यूपीआई स्विच इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक, और अब यहाँ पे फी कॉमर्स ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नावी ये ओवरटेक कर गया क्रेडको टू बिकम द 4th लार्जेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अगर हम बात करें, एनपीसीआई डाटा शो करता है कि नवी विटनेस 31% ग्रोथ बाय रजिस्टरिंग 157.51 मिलियन ट्रांजैक्शंस इन अक्टूबर, ओवरटेकिंग बेंगलुरु बेस्ड क्रेड रिकॉर्डेड एट 152.28 मिलियन ट्रांजैक्शंस इन द सेम मंथ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है विजय चांदोक, इनको अपॉइंट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनएसडीएल। एनएसडीएल क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरी
लिमिटेड, राइट। 5 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किनको सक्सीड करेंगे? पद्माजा चुंद्रू को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ, और 5 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था आईसीआईसीआई बैंक से 1993 में। देन इनको एलिवेट कर दिया टू द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन 2010। देन 2016 में ये ईडी बन गए थे बैंक के, करेक्ट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्वायर करेंगे स्टेक पेंटाग्रॉन पेगाट्रॉन आईफोन प्लांट में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, एंड कितना परसेंट स्टेक यहाँ पे एक्वायर करेगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? 40% स्टेक, 60% स्टेक यहाँ पे एक्वायर करेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन पेगाट्रॉन्स आईफोन प्लांट इन तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो अभी एक नई क्रोकोडाइल की स्पीशीज डिस्कवर हुई है वियतनाम में, जिसका नाम रखा गया है काओ बैंक क्रोकोडाइल न्यूएट। नेक्स्ट ऑब्यूट्री पे आ जाते हैं। एसआर ग्रुप के को फाउंडर शशि रुइया, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 81। यहाँ पर आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनका निधन हुआ मुंबई महाराष्ट्र में, एंड ये अपनी ह्यूमिलिटी एंड फिलैंथ्रोपी के लिए यहाँ पे जाने जाते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, एंड अपने डोनेशन के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, करेक्ट। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर रिनोन्ड एंडोक्राइन सर्जन एंड पद्मश्री अवॉर्डी शिवापत्थम विट्टल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 83, एंड इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2011 में फॉर हिज सर्विस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। हम बात कर रहे हैं डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। 30 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, यूएन के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली। एंड केमिकल वेपन्स ना, याद रखिएगा, इंटरनेशनल अगर हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करें या फिर इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, इवन यूएन के द्वारा यहाँ पे ये केमिकल वॉरफेयर, आपके केमिकल वेपन्स बैन किए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडली हो जाते हैं, राइट। इनको कंसिडर नहीं किया जाता है, करेक्ट। बट जिन लोगों ने, जब ये वेपन्स को यूज़ किया गया वेरियस कंट्रीज़ के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उस दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 30 नवंबर को। पहली बार 2016 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे की। HIV एड्स, ये एड्स से बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो आपका जो इम्यून सिस्टम हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। आपको हल्का सा भी कट लगाएगा ना, तो आप 1-2 दिन तक ब्लीड करते रहेंगे, वो कट में आपको खुरन नहीं आएगा एकदम, राइट। तो आपको बुखार हो जाएगा, हल्का सा इन्फेक्शन हो जाएगा ना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है, करेक्ट। तो वर्ल्ड एड्स डे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। तो ये है आपका वर्ल्ड एड्स डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इसके बाद हम बात करते हैं 60th रेजिंग डे ऑफ द BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि, और 1 दिसंबर को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, और इस साल इसका 60वां एडिशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जो हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज के ऊपर। डी कृष्ण कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे, राइट। देन इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने अपॉइंट किया खिल्ली राम मीना को एज द मिजोरम्स चीफ सेक्रेटरी। तो मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है खिल्ली राम मीना जी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली एक को लेंडिंग पार्टनरशिप करी C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ, ताकि जो लोन्स है MSME सेक्टर को वो और ज़्यादा दिए जा सके, इजीली प्रोवाइड किए जा सके। तो वो है SIDBI। तो SIDBI ने किनके साथ? C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ ये पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैबोरेट किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक पैनल सेटअप किए जाएंगे, राइट, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा। तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा? वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर टाई अप करा है। नेक्स्ट, सेबी चेयरमैन मदाबी पुरी बक ने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट डैश। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस IRDAI से? वो है इंश्योरेंस देखो, इनको ये लाइसेंस मिला है
एंड एक और चीज़, इस लाइसेंस से अब क्या होगा, जो फर्म है ये ऑफर कर सकेगी री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया गोकी के साथ, जो कि स्मार्ट वाइटल प्लस जिन्होंने लॉन्च किया फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी गोकी के साथ पार्टनर किया है। गोकी बेसिकली एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, एंड इन्होंने एक वेरिएबल वॉच लॉन्च की जिसका प्राइस रहेगा 3499। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड इन्होंने एक एआई ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ, ताकि एआई ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी, लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि जो इंडियंस हैं एंड एनआरआईज हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया, वो है HDFC सिक्योरिटीज़। एंड यहाँ पे इसके अंडर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2500,000 एनुअली। Next, which type of cooperative banks are covered under RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रेवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किनके साथ मिलके ये कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन ईल्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे ईल्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना, राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी, एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लैंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो HSBC के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है। बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC ICC NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली, तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिटेड एंड LFT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये NBFC ICC होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज।
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला यूपीआई फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड यूपीआई सेतु। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है यूपीआई सेतु को? तो यूपीआई सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे यूपीआई से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, ईएमआई ऑप्शन, यूपीआई ऑटो पे, क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स का ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इंडिया का पहला स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी? तो सेबी से रीट का लाइसेंस, पहली इंडियन रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रीट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है प्रॉपर्टी शेयर को मिला है। रीट होता है बेसिकली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पैसा आप ले सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एंड इसके अंदर प्रॉपर्टी शेयर वो पहली इंडियन कंपनी बनी टू रिसीव दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स? तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स? वो है एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। फोन पे की मदद से ये ऑफर कर रहे हैं इंस्टेंट टर्म लोन इंश्योरेंस, राइट। एंड ये एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पहले इंश्योरेंस बन गए हैं इस इंडस्ट्री में टू ऑफर इंस्टेंट इंश्योरेंस थ्रू फोन पे। 5 लाख से लेके 25 लाख तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो प्रीमियम है ईयरली पे कर लो या मंथली पे कर लो, एंड 5,000 रुपये से यहाँ पे प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है मंथली। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस, जो कि एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है इन पार्टनरशिप विद वीज़ा? तो ये जो कार्ड लॉन्च किया गया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड एक्सिस बैंक ने ही याद करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ स्पर्श वीक भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात? तो किन्होंने? वो है आरबीआई ने यहाँ पे इनको अलाउ किया इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पे पैसा इस बॉन्ड्स के थ्रू रेज करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता तो यहाँ पे पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता, एंड यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना जब तक आप इनको होल्ड करते हैं, एंड फिर एप्रिशिएशन होता है, एंड वो जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, हु विल बी द सीईओ ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड? तो ललिता नटराज यहाँ पे नई सीईओ बने हैं ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड के। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द एनबीएफसी लाइसेंस? तो किनको मिला है? जय किसान को मिला है, एंड इस लाइसेंस से अब क्या होगा बेसिकली? इस लाइसेंस से जो ये एनबीएफसी है ये ऑफर कर सकेगी वेरियस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लोन टू द फार्मर्स एंड जो भी रूरल एरियाज में बिजनेसमैन है। Which bank has recently fined 2.68 crore rupees by RBI for contravention of certain provisions including opening of current accounts या फिर इंटरेस्ट रेट्स या डिपॉजिट एंड फ्रॉड क्लासिफिकेशन के लिए? तो किस बैंक पर यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई? यूको बैंक पर। कितनी? 2.68 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ साथ 2.1 लाख रुपीज़ की भी पेनल्टी इम्पोज की गई है किस पर? सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर। केवाईसी की कुछ गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं की इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी यूएस डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन को फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन लॉन्च किया एट इट्स न्यूली ओपन ऑफशोर ब्रांच जो कि जिफ्ट सिटी में रहेगी? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखेंगे आपका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने यूएस डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है एनआरआईज के लिए, राइट। कहाँ पर? जिफ्ट सिटी में जो इनकी ब्रांच रहेगी। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है इनकम सुरक्षा प्लान? करेक्ट। तो किसने लॉन्च किया? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। करेक्ट। ये इनकम ये टैक्स फ्री ही नहीं है, बट यहाँ पर आपको एनुअली कंपाउंड में मिलेगा ऑफ 5 to 6% जो कि एडजस्टेड है फॉर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, किस फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड येस बैंक लिमिटेड? तो वो कौन सा है? वो है पॉप टेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये इंडिया का पहला मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रहेगा। नेक्स्ट,
किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम रहेगा स्पेशल केयर गोल्ड, जो कि डिजाइंड है टू प्रोवाइड द नीड्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी को? तो आईसीआईसीआई, आई करेक्ट माई सेल्फ, ये लॉन्च किया गया है स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इससे क्या है, जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनको एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा, राइट। यहीं पे हम देखेंगे जो 18 से 65 साल के लोग हैं, करेक्ट, वो इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। एंड ये पॉलिसी 1 साल का टर्म इंश्योरेंस देती है इंडिविजुअल कवरेज को, एंड 4 से 5 लाख रुपए का कवर भी मिलता है हेल्थ का। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किए 2 इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, जो कि है यूपीआई एटीएम एंड दूसरा है भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, उसके दौरान इनको लॉन्च किया गया था। ये यूपीआई एटीएम क्या है, कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी है एंड डिपॉजिट फैसिलिटी है, यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हैं आप इसको। एंड भारत कनेक्ट ये आपका B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर बिजनेसेस। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, उस फिक्स डिपॉजिट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे इंटरेस्ट रेट 7.25% तक मिल जाता है। तो कौन सी फिक्स डिपॉजिट है? वो है स्टार धन वृद्धि। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पेमेंट्स हब पे सिक्योर डाटा, इंडिया यूपीआई हैज प्रोसेस्ड नियरली कितना इन रुपीज इन ट्रांजैक्शन अप्रैल से जुलाई के बीच में, सरपासिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो इंडिया ने 81 लाख करोड़ रुपीज का ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो किया है बिटवीन यूपीआई की मदद से अप्रैल से जुलाई के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट गेटवे हैज़ रिसेंटली रिसीव फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई कि वो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, वो है पे शार्प। नेक्स्ट, अभी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रीब्रांड किया खुद को एज व्हाट? खुद को एज अ जुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के तौर पे इन्होंने रीब्रांड करा। नेक्स्ट, कौन है चेयरपर्सन ऑफ 22 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी जो फॉर्म की गई थी सेबी के द्वारा उसके? तो कौन है वो है रामा सुब्रमण्यम गांधी जी। एंड ये कमेटी लाई गई थी फॉर बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर टू सेबी ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, हार्मोनाइजेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सो ऑन। आते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला आप मुझे अभी बताओ, रिसेंटली हम किसने अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप को जीता 2024 के लिए? दूसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली K4 मिसाइल को, न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया, किस INS से इसको टेस्ट किया गया था वो बताओ। और थर्ड क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एक किनको, अगर मैं आपसे पूछूं किन्होंने डेविस कप को जीत लिया है, ये हुआ कहां पर था, लोकेशन बताओ। इसके दौरान किन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ये इनका लास्ट इवेंट था डेविस कप, एंड किसके द्वारा डेविस कप को जीता गया। तो ये 3 चीजें नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट्स। अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।